نارتھ ناظم آباد سے بہن بھائی کے مبینہ اغوا کا کیس ہے۔ عدالت نے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے دونوں بچوں اور خالہ فرحین عرف سونیا کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ نارتھ ناظم آباد سے بہن بھائی کے مبینہ اغوا کا کیس، عدالت نے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے دونوں بچوں اور خالہ فرحین عرف سونیا کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں نارتھ ناظم آباد سے بہن بھائی کے مبینہ اغوا کا کیس ہے۔ عدالت نے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے دونوں بچوں اور خالہ فرحین عرف سونیا کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے اور بچوں اور خالہ فرحین سونیا کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ فرحین سونیا بچوں کو تھانے کی حدود سے باہر نہیں لے جا سکتی، یہ عدالت نے حکم جاری کیا ہے، اور SSP سینٹرل کسی افسر کو فوری تعینات کریں، یہ بھی عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے۔ پولیس افسر یقینی بنائے کہ بچوں کو کسٹڈی متعلقہ تھانے کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے SBCA بلڈرز اور دیگر سے رہائشیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تجاویز طلب کر لیں۔ C189 FB ایریا بلاک 6 پر غیر قانونی تعمیرات سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات کے کیس میں خریداروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم پیش رفت۔ عدالت نے SBCA بلڈرز اور دیگر سے رہائشیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تجاویز طلب کر لیے۔ C189 FB ایریا بلاک 6 پر غیر قانونی تعمیرات سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس صلاح الدین پنہون نے ریمارکس دیے کہ SBC اور بلڈرز کی ملی بھگت سے غیر قانونی تعمیرات کاروبار بن گیا، پھر شکایت آتی ہے عمارتیں ٹوٹتی ہیں، دوبارہ بلڈر اور SBCA کا دھندا شروع ہو جاتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سارے کھیل میں بیچارے خریدار مارے جاتے ہیں، ان کے سامنے تو چور ڈاکو بھی معصوم لگتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ کمپلیشن پلان اپروول یا کسی بہانے سے SBCA خلاف ورزی کا الزام عائد کر دیتی ہے، پھر ہم جیسے ججز بھی قانون کے نام پر یہ عمارتیں گرانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ جسٹس صلاح الدین پنہون نے ریمارکس دیے کہ عدالتوں کو اس کاروبار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وکیل SBA نے عدالت کو بتایا کہ لائسنس یافتہ بلڈر کی رقم ڈپازٹ ہوتی ہے، قانون خلاف ورزی کی صورت میں اسے ضبط کر لیا جاتا ہے۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا کسی بلڈر کو بلیک لسٹ کیا، اگر کر بھی دیں گے تو رقم لے کر پھر وائٹ کر دیں گے۔ SBCA نے C189 FB ایریا بلاک 6 منظم کرنے کی رپورٹ جمع کرا دی۔ پلاٹ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف محمد جمیل ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی تھی۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے کلک اینڈ فلپ کے دفتر کا اچانک دورہ کیا۔ صوبائی وزیر کو کلک کی ویریفیکیشن اور بلدیاتی ملازمین کی بائیو میٹرک سمیت دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر بلدیات ہاؤسنگ اور ٹاؤن پلاننگ سندھ سعید غنی نے کلک اور سویپ کے دفتر کا اچانک دورہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر نے کلک کے زیر انتظام چلنے والے منصوبوں سمیت دیگر امور پر متعلقہ حکام سے تفصیلی بریفنگ لی ہے۔ صوبائی وزیر کو بلدیاتی ملازمین کی ویریفیکیشن اور بلدیاتی ملازمین کی بائیو میٹرک سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا ہے، جبکہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کلک آصف جان صدیقی نے کلک کے تحت ورلڈ بینک کے اشتراک سے کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے بھی بریفنگ دی ہے صوبائی وزیر کو۔ صوبائی وزیر سعید غنی کو آئندہ مالی سال میں KMC کے اربوں روپے سے متعلق ہونے والے منصوبوں سے بھی آگاہ کیا گیا ہے، جبکہ کلک کے تحت بلدیاتی ملازمین کی KMC سمیت کراچی کے 12 ٹاؤنز کے ملازمین کی ویریفیکیشن سے متعلق بھی انہیں آگاہی فراہم کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ KMC میں 950 گھوسٹ اور 200 ایسے ملازمین کی نشاندہی ہوئی ہے جو ایک شناختی کارڈ پر 2 محکموں سے تنخواہیں وصول کرتے تھے، جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے 12 ٹاؤنز میں 35 گھوسٹ ملازمین کی نشاندہی ہوئی ہے، جس پر سعید غنی نے کہا ہے کہ تمام ٹاؤنز کے ساتھ ساتھ UC کی سطح پر بھی ملازمین کی ویریفیکیشن کو یقینی بنایا جائے، جبکہ محکمہ بلدیات کے تمام ملازمین کی ویریفیکیشن کے بعد
हाजिरी को बायोमेट्रिक करके तनख्वाहें बराह रास्ता उनके अकाउंट में जो है वो भेजी जाए। सईद गनी ने जो है ये भी कहा है कि चाहते हैं शहर में जल्द से जल्द गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तामीर हो, जबकि कराची के कई टन पर मुश्तमिल कचरे को साइंटिफिक तरीके से ठिकाने लगाने पर भी मुशावरत हुई है। जी अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा कि जल्द से जल्द गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तामीर हो, ये सईद गनी की जानिब से कहा गया है, तो कब तक इस पर अमल दरामद हो जाएगा? देखें, बिल्कुल आज जो है सूबाई वजीर ने स्वीप के दफ्तर का भी दौरा किया है और एमडी स्वीप जुबैर चन्ना से उन्होंने मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो है इस उमूर पर बातचीत की गई है कि शहर में जल्द से जल्द गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो है वो बड़ी तादाद में तामीर किए जाएंगे, जिसके तहत जो है कराची के कई टन पर मुश्तमिल कचरे को साइंटिफिक तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा। क्योंकि अभी 2 रोज कबल जो है वो सिंध काबीना जो है वो अनाउंस की गई है और सूबाई वजीर सईद गनी को जो है चार्ज दिया गया है, जिसके तहत आज उनकी ये पहली मीटिंग हुई है। मुतवक्का तौर पर जल्द जो है वो शहर में बड़ी तादाद में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तामीर किए जाएंगे। जी ठीक है शुएब, साथ ही मौजूद रहिएगा। MKM के रुकन कौमी असम्बली का शहर में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस आसिया इसहाक और दीगर अरकान कौमी असम्बली की जानिब से नोटिस जमा करवाया गया। मजीद बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, इस सवाल से भी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल MKM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने कराची में बिजली व गैस की लोड शेडिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है कौमी असम्बली में जमा करवा दिया है, जिस पर MKM के दीगर अरकान कौमी असम्बली के भी दस्तखत है। इस नोटिस में ये मुतालबा किया गया है वफाकी वजीर तवानाई से कि कराची और हैदराबाद में शहर अफ्तार में गैस की बंदिश और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर जो है वो नोटिस लिया जाए। जबकि ये भी कहा गया है इस नोटिस में कि कराची और हैदराबाद में शहर अफ्तार के औकात में गैस व बिजली की लोड शेडिंग से आवाम को शदीद परेशानी होती है। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में गैस व बिजली की बंदिश से आवाम शहर अफ्तार करने से जो है वो कासिर है। नोटिस में वफाकी वजीर से मुतालबा किया गया है कि वो इस दिन में मुतालिका अदारों से जो है फौरी तौर पर बात पुरस करें और इस मसले का हल निकालें। जी ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची ने KMC के 792 रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात अदा कर दिए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अब भी KMC रिटायर्ड मुलाजमीन के 10.5 अरब की कर्जदार है। मज़ीद जानते हैं जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन की ईद से कबल ईद हो गई। बरसों से दफातर के धक्के खाते मुलाजमीन को हक मिल गया। KMC बिल्डिंग में मेयर कराची ने 792 रिटायर्ड मुलाजमीन को बकाया जात के चेक दिए। अताउल्ला इनके बाद आएंगे, अताउल्ला के बाद फरजाना कौसर साहिबा तशरीफ लाएंगे। फरजाना कौसर साहिबा। मेयर कराची बोले अपना फर्ज अदा कर दिया, सिंध हुकूमत से मदद ली और KMC के अखराजात से बचाकर लोगों को वाजिबात दिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम बेहतर रिकवरी कर सकते हैं। सिंध हुकूमत के गुज़िश्ता दौर में काबीना से 1.4 अरब की मंजूरी कराई। शहर में मजीद तरक्याती काम होंगे। मैं बताता चलूँ कि मैंने एक ऐलान किया था कि मैं KPT से रिकवरी करके दूंगा। 50 करोड़ का मैंने ऐलान किया था, अभी तक 38 करोड़ रुपए KMC के अकाउंट में आ चुके हैं और इंशाल्लाह मज़ीद 12 करोड़ रुपए KMC के अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरीके से हमने अपनी सिटी काउंसिल से ईद उल अज़हा के हवाले से एक नई करारदाद मंजूर कराई है, एक नया टैक्सेशन का निज़ाम हमने मंजूर कराया है, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पैसा चोरी चकारी हो जाती थी अब वो पैसा KMC के अकाउंट में आएगा। और अगेन मैं समझता हूँ 55 से 60 करोड़ रुपए की आमदनी हमारी मज़ीद उस एवेन्यू से होगी। रिटायर्ड मुलाजमीन ने चेक मिलने पर मेयर कराची का शुक्रिया अदा किया। 2017 में रिटायर हो गया था, अभी तक मुझे नहीं पैसे मिले। अब जो है ना ये पीपलवाड़ी के दौर में जो है मुर्तज़ा वहाब साहब ने कोई कोशिश की है क्या है, तो उसके बावजूद अब जो है वो मिले हैं। मैंने 29 साल जॉब की है KMC डिपार्टमेंट टीचर, और क्या कहते हैं 2016 में मैं रिटायर हो गई थी।
और आज 7.5 साल के बाद मुझे कंप्लीट हो जाएगा मेरा, मतलब जो मेरा फंड था वो सब। मेयर कराची ने ओल्ड सिटी एरिया के इलाके रामस्वामी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल्द तरक्याती काम शुरू कराने और पंपिंग के निज़ाम को लोड शेडिंग फ्री करने के अज़म का इजहार किया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ जुनेद जावेद, सिटी 21। शहरियों को मिलावट से पाक दूध की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन। मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के ताउन से लियाकताबाद में डेयरी लैब कायम। लैब दूध में मौजूद अज्जा के बारे में तफसीली रिपोर्ट फ्राहम करेगी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखते हैं। दूध में मिलावट करने वालों के गिर्द शिकंजा तंग। सिंध फूड अथॉरिटी और मिल्क रिटेलर ने डेयरी लैब कायम कर दी। लियाकताबाद में बनने वाली डेयरी लैब में दूध की मशीन के जरिए टेस्टिंग की जाती है। 1 मिनट में ही सैंपल की रिपोर्ट अज्जा समेत तैयार होती है। मिल्क रिटेलर अमजद अली का कहना है लैब के कयाम का मकसद दूध की क्वालिटी चेक करना है। शहरी भी मिलावट वाले दूध का तयन कर सकेंगे। कुछ लोग दूध में मिलावट करते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। एंट्री पॉइंट पे भी चेक किया जाए, जो शहर के एंट्री पॉइंट हैं वहाँ भी चेक किया जाए, और फिर शहर में भी चेक किया जाए। और नो डाउट कोई अगर इस तरह की काली भेड़ें मौजूद हैं जो इस दूध जैसी पाक चीज़ को भी नापाक करके बेच रही हैं या उसको मिलावट से मिस कर रही हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बिला तफरीक होनी चाहिए। इसी सिलसिले में सिंध फूड अथॉरिटी के जनाब डीजी साहब आगा फ़खर साहब ने हमसे रब्ता किया 2 दिन पहले, और हमने इस बात पर आमादगी का इजहार किया कि हम उनके साथ खड़े होंगे और इस तरह की लैब्स को जो है हम उनके साथ डील करेंगे। दूध की टेस्टिंग फीस 250 रुपए है, जबकि रिपोर्ट भी फौरी फराहम कर दी जाती है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सचल पुलिस का जमान टाउन थाने पर छापा। ताजिर के अगवा और डकैती के इल्जाम में एसएचओ समेत 4 पुलिस एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने तमाम एहलकारों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुलजमान पर ताजिर को अगवा और 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटने का इल्जाम है। मुलजमान ने 4 रोज कबल सोहराब गोट में वारदात की थी। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अंधेर नगरी चौपट राज। कराची पुलिस अगवा बराए तावान में मुलविस निकली। ताजिर को किसी और ने नहीं बल्कि कोरंगी जमान टाउन के एहलकारों ने अगवा किया। सचल पुलिस ने जमान टाउन में छापा मारकर तमाम एहलकारों को हिरासत में ले लिया। एसएचओ जमान टाउन राव रफीक को 4 एहलकारों समेत नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 4 रोज कबल ताजिर और उसके पार्टनर्स को सुपर हाईवे से अगवा किया और 1 करोड़ 18 लाख की रकम लूट ली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस पार्टी ताजिर को नॉर्थ नाज़िमाबाद छोड़कर फरार हो गई। वाक़े का मुकदमा सचल थाने में दर्ज कर लिया गया। दौरान तफ्तीश हिरासत में लिए गए एसएचओ जमान टाउन राव रफीक और पुलिस पार्टी ताजिर के अगवा और डकैती में मुलविस पाए, जिसके बाद एसएचओ राव रफीक को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस अफसर से वाक़े में मुलविस दीगर मुल्जिमान के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। गैस लोड शेडिंग ने बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी मुतासिर कर दिया। स्कूल के नन्हे तालिब इल्म भी गैस न होने का शिकवा करने लगे। कहते हैं गैस ना होने की वजह से घर में सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। मज़ीद जानते हैं अयाज राना की रिपोर्ट में। कराची में गैस की लोड शेडिंग से स्कूल जाने वाले बच्चे भी मुतासिर। नन्हे तालिबे इल्मों ने गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया। सुई सदरन गैस कंपनी के नए औकातकार भी शहरियों को रिलीफ ना दे सके। सुबह के औकात में गैस ना मिलने पर स्कूल के बच्चों की भी दुहाइयाँ। कहते हैं सुबह घर में गैस नहीं होती, घर वाले सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस नहीं आ रही, कुछ भी नहीं बन पाया, इसलिए कुछ भी नहीं बना पाए। अम्मा कहती है गैस नहीं आ रही, तो गैस के बगैर हम तो कुछ भी नहीं खा सकते, बाहर से खा सकते हैं। अभी तो फिलहाल रमजान है, तभी तो रोजे चल रहे। मैं मम्मा को कहती हूँ मम्मा मुझे खाना है, पर मम्मा कहती हैं कि अभी सिर्फ बिस्किट और चाय से गुजारा कर लो, अभी तो कोई गैस आ नहीं रही है, तो अभी नहीं बनेगा। वालिदैन भी गैस की अदम फराहमी से परेशान दिखाई दिए। बोले गैस मिल नहीं रही, दिन में सिर्फ 2 घंटे ही गैस दी जा रही है। तो परेशानी है, गैस सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्या करें। अभी हम इतने कॉल करते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है इनका। रमजानुल मुबारक में एसएचजीसी की जानिब से शहर भर में सुबह 9 बजे से दिन 3 बजे तक और रात 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गैस लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन फरहान के साथ अयाज राना, सिटी 21। कीमतों को कंट्रोल के लिए प्याज और केले की एक्सपोर्ट पर पाबंदी बेसूद साबित हो गई। एक्सपोर्टर असलम पखाली कहते हैं पाबंदी लगे 6 दिन हो गए मगर मुस्बत नताइज नहीं आ सके। एक्सपोर्ट बंद करने के बावजूद कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। मजीद काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
मकामी मार्केट की ज़रूरत और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। प्याज और केलों की बरामद पर 15 अप्रैल तक पाबंदी तो लगा दी, लेकिन नताइज ना आ सके। एक्सपोर्टर असलम बकाली कहते हैं कि एक्सपोर्ट बंद करने के बावजूद कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। रिटेलर बेतहाशा मुनाफा कमा रहे हैं। फल 200 से 300 रुपए मार्जिन पर फरोख्त हो रहा है। इसका बेनिफिट जो कंज्यूमर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सारा बेनिफिट जो है ना वो रिटेलर जो है वो बेतहाशा ले रहा है। आप खाली प्याज और केले को छोड़ के आप कोई भी प्रोडक्ट उठा ले, ठीक है, फूड प्रोडक्ट कोई भी उठा ले, पहला वीक जो होगा रमज़ान का उसमें ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की, तो बहुत महंगा होता है। इतना कि आपकी सोच है। मैं एक मिसाल दूंगा चीकू की, 100 रुपये किलो चीकू मिल रहा है होलसेल में, 300 रुपये का बिक रहा है। असलम पाकाली बोले शहरी प्याज ज़्यादा खरीदने से गुरेज करें, जितनी रोज़ की ज़रूरत है उतनी ही खरीदें। तलब व रसद में फ़र्क आने से कीमत गिर जाएगी। घरेलू खातूनों से एड्रेस करके ये कहूँगा कि आप जो है ना इतनी क्वांटिटी लें जितनी आप रोज़ इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि प्याज एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज नहीं है। वो जो भी होलसेलर या रिटेलर बड़ी तादाद में वो स्टोर नहीं कर सकता, तो रमज़ान की वजह से हम ख़रीदारी ज़्यादा कर लेते हैं। 28 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने वफाक से केले और प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी की दरख्वास्त की थी। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस में 26,800 एहलकार की खाली असामियों पर नई भर्तियों का फैसला कर लिया है। नई भर्तियां 6 माह के अंदर 3 मराहिल में थर्ड पार्टी IBA सखर के जरिए की जाएंगी। आपको बता रहे हैं सिंध पुलिस में नई भर्तियों का फैसला हुआ है और सिंध पुलिस में 26,800 एहलकारों की खाली असामियों पर नई भर्तियों का फैसला कर लिया। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नौरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 26,800 पुलिस में खाली समय पर एहलकारों की नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया। ये नई भर्तियां थर्ड पार्टी यानी सिंध टेस्टिंग सर्विस के जरिए की जाएंगी। सिंध पुलिस और IBA सरकार के माबीन बाज़ाब्ता पर माहदा आ गया। ये भर्तियां 6 माह के अंदर 3 मरहले में की जाएगी। पहले मरहले में 6 रेंज में जो है 12,500 एहलकारों की भर्तियां की जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में सिंध पुलिस के स्पेशल यूनिट है उनमें 3,522 एहलकारों की भर्तियां की जाएगी, जिसमें CM यूनिट में 1991, जबकि RRS यूनिट में जो है 1531 एहलकारों की भर्तियां होगी। इसके अलावा तीसरे मरहले में 18,899 जो कुर्सियों पर CM यूनिट में 10,000, RRS यूनिट में 230 एहलकारों की भर्तियां की जाएगी, जबकि सिंध पुलिस के मुख्य यूनिट में 5,389 सर्वर ड्राइवर की भी नई भर्तियां कर जाएंगी। जी आज़ाद नौरिया हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध सरकार ने IG जेल खाना जात सैयद मुनव्वर अली शाह को ओहदे से हटा दिया। काजी नज़ीर अहमद नए IG जेल खाना जात तैनात। मज़ीद इस पर बात करेंगे आज़ाद नौरियों से। आज़ाद, इस बारे भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने साबका निगरान हुकूमत के दौर में जूनियर रिटर्निंग अफसर को जो सैयद मुनव्वर अली शाह को IG जेल खाना जात तैनात किया गया, जिनको आज जो सिंध सरकार ने जो है जूनियर अफसर को हटाकर सीनियर अफसर काजी नज़ीर अहमद है उनको नया IG जेल खाना जात तैनात कर दिया, जबकि सैयद मुनव्वर अली शाह को महकमा दाखिला में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद ने गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। जुर्मानों के बावजूद एशियाई खुरनोश महंगी फरोख्त करने पर हैदरी मार्केट की 3 दुकानों को सील कर दिया गया। मजीद रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। गिरा फरोशी और तजावुजात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद मुतहर्रिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद इमरान सोलंगी ने हैदरी मार्केट में बैक वक्त प्राइस चेकिंग और इंसदाद तजावुजात की कार्रवाई की। मुनाफाखोरी पर जुर्माने और 3 दुकानें सील करने के साथ तजावुजात का खात्मा भी किया। जिन दुकानों को हम जुर्माना करते हैं हम आके चेक करते हैं कि आया पहले तो वो रेट पे बेच रहे हैं, उसके बाद जो पिछला उन्होंने जुर्माना हमने लगाया था वो पे किया नहीं किया। तो उसमें कुछ लोगों को हमने देखा कि पहले जुर्माने के बावजूद वो दोबारा महंगी अशिया बेच रहे थे, उन दुकानों को हम सील कर रहे हैं इस वक्त। कार्रवाई में शरीक इलाका पुलिस अफसर का कहना था कि बड़ी कार्रवाई के बावजूद सूरत हाल कंट्रोल में रही।
امن امان کی صورتحال بالکل تسلی بخش ہے. ہم اے سی صاحب کے ساتھ ہیں, انہوں نے اپنا کام کیا ہے, ایسی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے. امن امان کی صورتحال اسی انکروچمنٹ کے سلسلے میں اور پرائس چیکنگ کے سلسلے میں بالکل تسلی بخش رہی ہے. اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد نے متعدد دکانداروں کو پرائس لسٹ آویزہ نہ کرنے پر وارننگ بھی دی. کیمرہ مین شاہزیب رضا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. رمضان میں کھانے پینے سے متعلق ماہرین غذائیت نے ہدایات دے دیں. نیوٹریشن آویز علی کہتی ہیں سحر و افطار میں زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے گریز کیا جائے. کھانوں کو اسٹیم اور کم تیل میں پکا کر کھانا زیادہ مفید ہے. ہمنا نساء کی رپورٹ. رمضان اور صحت ماہرین طب کی رائے حاضر ہے. ماہ سیام میں ہر گھر میں سحر و افطار میں مرغن غذائیت تیار ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ شہری بیمار ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ماہرین طب کہتے ہیں پکوڑے اور سموسوں کو زیادہ تیل میں نہ تلے, مایونیز کا استعمال کم کرے. ماہر غذائیت آویز علی کا کہنا ہے کہ سحر و افطار میں زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے گریز کیا جائے. دیکھیں, رمضان کے حوالے سے ڈائٹ کو اگر ہم فالو اپ کریں گے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کا سموسہ کھانے کا دل کر ہے تو آپ سموسہ نہیں کھائیں. آپ اس میں ڈیپ فرائی مت کریں اس کو, آپ اس میں کسی ایئر فرائی میں اس کو بنا لیں. آویز علی کہتی ہیں رمضان میں فریش جوسز کا استعمال زیادہ بہتر ہے. بلڈ پریشر اور ذیابیطیز کے مریضوں کو گریپ فروٹ کا جوس پینا چاہیے. آپ فروٹ کی طرف چلے جائیں, جوسز زیادہ پی لیں. اب وہ جو آپ کہہ لیں ٹینک پی رہے ہیں یا روح افزا پی رہے ہیں تو اس سے آپ بہتر ہے فریش جوسز لے لیں. اورنج ہے, موسمی ہے, اور جو ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں یا جو اس طرح بلڈ پریشر کے پیشنٹ ان کو چاہیے وہ گریپ فروٹ کا جوس کا استعمال ذرا زیادہ کر لیں. ماہر غذائیت کا کہنا ہے کہ رمضان میں بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور ذیابیطیز کے مریضوں کو کھانوں میں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ ہمنا نثار, سٹی 21. شہر قائد کے باسیوں کے لیے اچھی خبر. آرام باغ روڈ پر فروٹ بچت اسٹال لگ گیا. بازار سے آدھی قیمت پر پھل فروخت ہونے لگے. فرحان خان کی رپورٹ. رمضان المبارک میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کا عزم. انتظامیہ کے ساتھ تاجر بھی میدان میں آ گئے. کراچی پرنٹنگ پریس ایسوسی ایشن کا احسن اقدام. آرام باغ روڈ پر فروٹ بچت اسٹال پر سیب, کھجور, اسٹرابری سمیت ہر پھل آدھی قیمت پر دستیاب. شہری پرنٹنگ پریس ایسوسی ایشن کے اقدام سے خوش. بولے مارکیٹ کے مقابلے میں ہر پھل سستا مل رہا ہے. یار یہ جو ہم نے یہ جو اسٹال لگا ہوا ہے اس پہ دام کافی کم ہے, اور یہ کھجور کا باکس جو ہے یہ مارٹ میں مل رہا ہے اس وقت 400 سے 450 کا, اور یہاں پر یہ زائدہ کا زمزم کا باکس کے نام سے, اور یہاں پر ہے 250 روپے کا سیل ہو رہا ہے یہ. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں سے پرچیزنگ کر رہے ہیں, اور کافی چیزوں میں بچت ہے یہاں پر. بس لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو جو ہے اچھے سے اچھے ریٹوں میں, کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا رمضان آتے ہیں اور ریٹ آگے بڑھ جاتے ہیں, تو لوگوں کو جو ہے پبلک سروس کے لیے ایسوسی ایشن کی طرف سے ہم لوگ جو ہے یہ سارا کرنا چاہ رہے ہیں. سیب یہ 200 روپے کلو دے رہے ہیں, 350 روپے کلو مل رہا ہے, تو یہ تو بہت سستا میں نے بھی لیے. کھجور کا ڈبہ ہے 200-250 روپے کا, 120 روپے کا دیا ہے. شہریوں نے شکوہ کیا کہ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے وہ پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں. کیمرامین فرحان کے ساتھ فرحان خان, سٹی 21. ماہ سیام کا آغاز ہوتے ہی درزیوں کا کام بڑھ گیا, لیکن کام کیسے کریں؟ طویل لوڈ شیڈنگ سے درزی پریشان. درزی کہتے ہیں طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ سے کام بری طرح متاثر ہو رہا ہے. مزید بتائیں گی نمرہ ریاست. بالکل جی, ماہ رمضان آتے ہی درزیوں کے کام میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے. مختلف مقامات پر ہم دیکھ رہے ہیں درزیوں کی دکانوں میں وقتاً فوقتاً جو ہے شہری جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اپنے کپڑے دے کر جا رہے ہیں. اسی مناسبت سے اس وقت کورنگی 2.5 نمبر کے علاقے موجود ہے درزی کی دکان پر. تو جہاں ان کے کام میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے, تو وہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے انہوں نے جو اس مسئلے نے جو ہے وہ درزیوں کو خاصا پریشان کر رکھا ہے. اسی والے سے بات کرنے کے لیے درزی ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ, اور کام کیسا اس وقت؟ کام تو ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا اسٹارٹ ہوا ہے, کام پہلے سے بہتر ہے. باقی لائٹ کا یہاں پر یہ ہے کہ لائٹ تو پتہ ہے آپ کو 1.5 گھنٹے دیتے ہیں اور 1.5 گھنٹے بند کر دیتے ہیں لائٹ. تو پوزیشن کافی خراب ہے لائٹ کی. جب لازمی ہے, جب لائٹ ہی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے, بیٹھے آتے ہیں پھر انتظار کرتے ہیں. کوئی سولر کا بیٹری کا بھی سیٹ اپ ہے نہیں, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے لاک ڈاؤن کے بعد سے, بیٹری کے ریٹ اتنے ہائی ہو گئے ہیں, تو جس کی وجہ سے ابھی نہیں کر پایا ہوں میں بیٹری کا انتظام. تو پہلے یہ تھا کہ بیٹری کا انتظام ہو جاتا تھا, کر لیتے تھے سیٹنگ, لیکن اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اب تھوڑا مشکل ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 1.5 گھنٹہ آپ نے بولا وقفے سے لائٹ جاتی ہے, تو جب لائٹ نہیں ہوتی تو پھر اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
उस वक्त यही है कि मैं तो खैर टेबल पे होता हूँ, कटिंग वटिंग देख लेता हूँ, अपनी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो देख लेते हैं। ये बेचारे बैठे आते हैं, अभी बिल्कुल फारिग होकर बैठे आते हैं। जो बच्चे हैं, अपना बच्चा है वो बटन वटन ये छोटे मोटे काम कर लेता है, या बाहर का कोई काम होता है वो निपटा लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो बंद हो जाता है काम। यकीनी तौर पर महंगाई ने जिस तरह से दर्जियों को असरअंदाज किया, उसके बाद जब अब जो है काम बहाल होना शुरू हुआ है, जैसे कि दर्जी ने बताया कि रमज़ान आते हैं तो ये त्यौहार का मौका होता है, तो शहरी ज़रूर जो है वो बुकिंग करवाते हैं और घरों से निकलते हैं, कपड़े लेकर आते हैं। लेकिन अब जो है वो बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग का है, जो 1.5 घंटे के लिए जो है वो हर 1.5 घंटे के वक्फे के बाद जो है वो 1.5 घंटे के लिए लाइट जाती है, जिसके बाद जो है काम शदीद मुतासिर होता है। और मुख्तलिफ दर्जियों की दुकानों पर सोलर लगाए गए हैं, बैटरी का इंतज़ाम है, लेकिन उन्होंने बताया कि कई ऐसी दुकानें भी मौजूद है जिन पर सोलर या बैटरी का इंतज़ाम नहीं है, जिसके बायस जो है वो काम मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो जाता है और रुक जाता है। अब उनका मुतालबा है इंतज़ामिया से, मुतल्लिका इदारों से, कि कम माह रमज़ान में जो है वो ऐसी सहूलत फराहम की जाए, औकात कार मुकर्रर किए जाएँ और ऐसे औकात कार मुकर्रर किए जाएँ जिसमें दर्जियों को और दीगर कारोबारी अफराद को सहूलत मैसर आ सके। जी। साबिक चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने रमज़ान मुबारक के लिए फितरा और फदिया सोम का रहमानी की रिपोर्ट देखिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मुताबिक अहले सरवत माली हैसियत के हिसाब से फितरा, फिदिया और कफारा अदा करें। रवा बरस फीकस फितरा और 1 रोजे का फिदिया गंदम के 2 किलो चक्की वाले आटे के हिसाब से 300 रुपए होगा। जौ के हिसाब से फितरा और 1 रोजे का फिदिया 600 रुपए बनता है। खजूर के हिसाब से फितरा और 1 रोजे का फिदिया 2400 रुपए होगा। किशमिश के हिसाब से फितरा और 1 रोजे का फिदिया 4400 रुपए होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का फितरे और फिदिये के हवाले से कहना है कि जिन खुशनसीब अफराद को अल्लाह ताला ने वाफिर दौलत से नवाजा है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक फितरे की अदायगी करें। 26 साल बाद इस साल रोज़े सर्दियों में आ गए। आने वाले सालों में रोज़े कितने साल सर्दियों में आते रहेंगे, माहिरीन फल्कियात ने सब बता दिया। फल्की हिसाब के मुताबिक आइंदा 13 साल रमज़ान सर्दियों में गुजारेंगे और 2037 तक रमज़ान जो है वो सर्द मौसम में होगा। रमज़ान अल मुबारक गर्मी में आएंगे या सर्दी में, रोज़े 29 होंगे या 30, हर मुसलमान की दिलचस्पी के सवालात, दिलचस्प हकाइक सामने आ गए। 26 साल बाद रमज़ान अल मुबारक की सर्दियों में आमद हुई है। आइंदा 1.5 दिहाई से ज़ायद अरसे के लिए माह मुबारक की आमद मौसम बहार, मौसम सरमा और मौसम ख़ज़ा में होगी। इब्तिदाई 2 साल तक रमज़ान का आखिरी हिस्सा मौसम बहार में होगा। 2038 में रमज़ान सितंबर की गर्मियों में आएंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि 7 साल बाद एक साल में 2 रमज़ान आएंगे। 2030 में रमज़ान पहले फरवरी और फिर दिसंबर में दोबारा आएंगे। 2030 में मुसलमान 38 रोजे रखेंगे। दिसंबर 2030 के आखिरी अशरे में रमज़ान दोबारा शुरू होंगे और 2032 में रोज़ा मुख्तसर तरीन होगा। 2031 सर्दियों के मुख्तसर दिन की वजह से रोज़ा सिर्फ 10.5 घंटे का होगा। कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी देखी गई है। मज़ीद तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज मुस्बत रहा। मार्केट में अचानक जबरदस्त तेजी आ गई। स्टॉक मार्केट में 6 कारोबारी हफ्ते मुसलसल मंदी से 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 2000 पॉइंट्स की कमी के बाद आज सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी को तरजीह दी, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1015 पॉइंट्स इजाफे से 65,000 की सतह अबूर कर गया और 1.56% इजाफे से 65,064 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट सरमायाकार जावेद खन्नानी का कहना है, मार्केट में मुसलसल मंदी थी, जिसकी वजह से मार्केट में आज सरमायाकारों को अच्छे रेट मिलने पर सरमायाकारी की है। 4-5 दिन वर्किंग डे लास्ट में जो मार्केट है 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुकी है, तो आज लोगों को डिस्काउंट रेट पे माल मिल रहा है, तो काफ़ी बाइंग भी आ रही है। और ये लग रहा है कि आज सेक्टर में जैसे मोटर सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, ऑयल है, गैस है, ये सेक्टर बड़े अच्छे चल रहे हैं। और स्टेट ये है कि आपका डिस्काउंट रेट भी जो स्टेट बैंक शायद स्टेट रखे, तो इस वजह से भी मार्केट में आपको पॉजिटिव मिल जाएगी। आज कारोबार के दौरान 332 कंपनियों के 31 करोड़ 40 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 10 अरब 46 करोड़ रुपए से जायद की रही। कारोबार के दौरान 247 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 70 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन फरहान के साथ अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान ओवरसीज़ प्रोमोटर एसोसिएशन के साबिक नायब सदर अदनान पराचा कहते हैं, तरसीलात ज़र में 2 बरसों से कमी मुल्क की मईशत के लिए ठीक नहीं। अशरफ खान की रिपोर्ट है। डॉलर की कमी को कैसे पूरा किया जाए, ओवरसीज प्रोमोटर एसोसिएशन ने हुकूमत को मशवरा दिया। पाकिस्तान ओवरसीज प्रोमोटर एसोसिएशन के साबिक नायब सदर अदनान पराचा कहते हैं कि रवां बरस जनवरी के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 16 करोड़ डॉलर कमी हुई।
पिछले 2 साल से तरसीलात ज़र में कमी देखी जा रही है। उन्होंने कहा, नए वजीर खजाना एक बैंकर हैं, उन्हें मालूम है कि तरसीलात ज़र की क्या अहमियत है। तरसीलात ज़र में कमी की वजूहात को फौरी हल करना होगा। देखिए, रेमिटेंसेज में जो कमी आई है, पिछले महीने से भी कमी आ गई है और हमारे पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि रेमिटेंसेज में कमी आती जा रही है। हमारे नए वजीर ख़जाना साहब आए हैं, वो ख़ुद एक बैंकर हैं और उनके पास ख़जाना का अमूर जो आया है, तो मैं समझता हूँ कि उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि किसी मुल्क के लिए रेमिटेंसेज की अहमियत क्या है। साबिक नायब सदर पाकिस्तान ओवरसीज प्रमोटर एसोसिएशन बोले, हुकूमत को बैरून मुमालिक नौकरियों के लिए जाने वालों के मसाइल हल करने होंगे। तजावीज़ पर अमल करके तरसीलात ज़र में 7 से 8 अरब डॉलर्स का इजाफा मुमकिन है। ये रेमिटेंसेज से ही मुमकिन है। हम रेमिटेंसेस को 7 से 8 अरब डॉलर अगले 12 से 15 महीनों के अंदर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हमें ऑन बोर्ड लेने के साथ साथ हमारी जो सजेशन है हमें इम्प्लीमेंटेशन बॉडी में लेके आए ताकि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करा सकें। अदनान बराचा का कहना था, डॉलर की किल्लत की वजह से पाकिस्तान को दोबारा IMF प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान पर नए प्रोग्राम के मजीद शराइत आयद होने से महंगाई बढ़ेगी। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। हुकूमत की परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने की मनसूबाबंदी, कराची चैम्बर ने इक़दाम को मईशत के लिए मस्बत करार दे दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट है। टैक्स नेट बढ़ाने का मिशन, वजीर खजाना का रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का इशारा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नायब सदर तनवीर बारी का कहना है कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना अच्छा इकदाम है, मगर वजीर खजाना ताजिर एसोसिएशन से मुलाकात के बाद कोई फैसला लें। जो लोग ऑलरेडी टैक्स में उन्हीं पे जो है टैक्स लगाए जाते हैं, उन्हीं पे टैक्सों की भरमार होती है, वो ऑडिट के केसेस भी भुगतते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं तो उनको टैक्स नेट में लाया जाए। हम पहले भी ये मुतालबा कर रहे थे। अच्छी बात है कि नए लोगों को टैक्स नेट में लाएं और परचून फरोशों को भी टैक्स नेट में लाएं, लेकिन जो भी काम करें वो परचून फरोशों या छोटे ताजरों की मुशावरत से किया जाए, क्योंकि फिर बाद में फिर मसाइल खड़े होते हैं। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख बोले, नई हुकूमत IMF के साथ बैठकर नए सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल करे। 5 साल की मुंतखब गवर्नमेंट है, इसको चाहिए कि IMF के साथ बैठकर वो सेक्टर जो सेक्टर्स के अंदर टैक्स की ज़रूरत है उधर ज़रूर बढ़ाएं। सिर्फ उन लोगों पर टैक्स नेट जो है ना ज़्यादा ना बढ़ाया जाए कि बिजली बढ़ा दी जाए, गैस बढ़ा दी जाए, जिससे मैं ये समझता हूँ कि वो जो चोरी है उसको रोकना चाहिए। कराची चैम्बर का कहना है, मुल्क में कई लोग टैक्स नेट से बाहर हैं। 2022 के मुकाबले 2023 में 41% कम रिटर्न फाइल हुआ। जो पहले से टैक्स नेट में हैं वो भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान से तिल की बरामदात में ज़बरदस्त इजाफा, चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़ुबैर मोतीवाला का कहना है, पाकिस्तान चीन में तिल का नंबर 1 सप्लायर बन चुका है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। चीन के साथ ज़राई शुबे और तिजारती ताल्लुकात में मजीद वसअत, बरामदात में इजाफा होने लगा। रवां मारी साल की इब्तदाई 8 माह में तेल की बरामदात में 278% इजाफा हुआ। जुलाई से दिसंबर तेल की एक्सपोर्ट $394 तक पहुँच गई। 2022 के मुकाबले में 242% इजाफा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़ुबैर मोतीवाले का कहना है, तेल का पाकिस्तान से एक्सपोर्ट में कोई शुमार नहीं था। इस साल $380 मिलियन की एक्सपोर्ट हो जाएगी। सेसमी सीड या तिल जिसको कहते हैं, वो एक्सपोर्ट में इसका कोई शुमार ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है वो $380 मिलियन की एक्सपोर्ट हो जाएगी, जिसके अंदर इंक्रीज कोई 242% का। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो एक ऐसी आइटम जो कभी एक्सपोर्ट होती नहीं थी पाकिस्तान से। डायरेक्टर जनरल एग्रो एंड फूड डिवीजन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी अतहर हुसैन खोकर बोले, तेल की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया में 90 से 5वें नंबर पर आ गया है। इस साल इंशाल्लाह हमारा सेसमे का जो एक्सपोर्ट है $400 मिलियन तक पहुंचेगा। ये पाकिस्तान की वाहिद प्रोडक्ट है जिसमें इतना जो है एक ह्यूज जंप आया है एक्सपोर्ट में। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने जो मेन क्लस्टर्स हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़र मुबादला के ज़खायर में बढ़ाने के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़म का इजहार किया है। काविश मेमन, सिटी 21। 300 यूनिट तक सबको मुफ्त बिजली देंगे, सूबाई वजीर नासिर शाह का दावा। कहा, सूबों का अपने हुकूक के लिए वजीर आज़म से मिलना खुश आइंद है। बिलावल भुट्टो ने जो टास्क दिए इस पर काम शुरू कर दिया। सैयद गनी बोले, सेनेट इलेक्शन रस्मी कार्रवाई है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लड़ते रहेंगे तो आवाम का नुकसान होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये जो महकमा दिया और उसके साथ साथ टास्क भी दिया, और उन्होंने कहा कि ग्रीन पार्क और सोलराइजेशन
के सिलसिले में जो हमने कहा है कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली जो है वो सबको देंगे और उसको प्रायोरिटी पे काम करें। मैंने कल ही वो मीटिंग भी की और हम उस पर काम शुरू कर दिए है और इंशाअल्लाह जो टास्क और जो वायदा मेरे चेयरमैन ने किया है उसको जल्द पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये काम उनको पहले भी करना चाहिए था। वो बिला वजह ये बात कहते रहे कि मैं फ़िलहाल को सदर नहीं मानता, मैं फ़िलहाल को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता, मैं फ़िलहाल को कुछ नहीं मानता। ये अजीब सी बात थी कि वो एक तरफ कुछ भी नहीं मान रहे थे, दूसरे वज़ीर आला खुद बन गए थे। तो अगर आप एक अमल का हिस्सा बन ही गए हैं तो आप फिर जो जिन ओहदों पर फाइज लोग हैं उनको आप तस्लीम करें और अब उनकी ज़िम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बेहतरी की तरफ होनी चाहिए, उनकी फलाह बहबूद की तरफ होनी चाहिए, सूबे के हालात बेहतर करने की तरफ होनी चाहिए, इसलिए कि वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं वहाँ से। असल तो सेनेट के इलेक्शन वही हैं जो 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं और यहाँ 12 सीटें हैं। हमें 100% यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 12 में से 11 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी और ये भी शायद पहली मरतबा होगा कि इतनी वाज़ेह अक्सरियत जो है पीपल्स पार्टी सूबा सिंध से सेनेट की नेशनल में। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू का कहना है कि वज़ीर आज़म ने इरसा का चेयरमैन लगा दिया है। इरसा में तमाम सूबों के मेंबरान होते हैं, चेयरमैन भी इन्हीं में से किसी को लगाया जाता है। निगरान हुकूमत को ये अख्तियार था और ये जो एक्ट में जो तरमीम हुई भी है ये ऑर्डिनेंस के तौर पर हुई है। अब ऑर्डिनेंस को हमेशा गलत मानते हैं हम। अब क्योंकि असेंबली मारज़ वजूद में आ गई है तो उस ऑर्डिनेंस को असेंबली में पेश किया जाना चाहिए। असेंबली में पास हो जाने के बाद अगर पास हो जाता उनका तरमीम तो फिर उनको ये चेयरमैन मुकर्रर करने का अख्तियार हो जाता, लेकिन चेयरमैन मुकर्रर हुआ है इस हुकूमत ने, इलेक्टेड ने। तरमीम निगरानी की पार्लियामेंट में लाए नहीं और उस पर अमल हो रहा है जो मैं समझता हूँ जायज़ बात नहीं है। रमज़ानुल मुबारक में गैस की बंदिश के औकात कार अक़लियती बरादरी के लिए दर्द सर बन गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट है। कश्मीर कॉलोनी में गैस के गंभीर मसाइल, अक़लियती बिरादरी की मुश्किलात बढ़ गईं। कश्मीर कॉलोनी में मसीही बिरादरी का कहना है कि गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं, लकड़ियों पर खाना बनाकर आजिज आ चुके हैं, रोज़ाना 300 रुपए की गैस भरवाते हैं। चूल्हा जला जला के जो हमारे बर्तन सब गंदे हो गए हैं, घर गंदा हो गया है, गैस तो साल हो गया नहीं आ रही। बोल रहे हैं अभी भी कि आएगी रमज़ान में, रमज़ान तो शुरू हो गया हमारी, अभी भी नहीं आ रही। वहाँ जाते हैं कंप्लेन करते हैं, कह दरखास्त लिख के लाओ, वो भी दे के आए हम, कितनी दफ़ा गए, आता ही नहीं है। भाई हम 2-2, 3-3 हज़ार का सिलेंडर भरवा रहे हैं तो उधर बिल का भी पैसे दें, गैस के भी दें, इधर भी दें। ये सिलेंडर दिखाओ भाई इनको, ये हमारे पास सिलेंडर जो हम सिलेंडर लाओ लाए, ये देखें 6,000 बिल आ गया। क्या करें, सारा दिन गैस नहीं आती तो हम क्या करेंगे। SSGC ने सुबह 9 से दोपहर 3 और रात 10 से रात 3 तक गैस बंदिश के औकात कार जारी किए हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर माह सयाम में शहरियों की सहूलत के लिए सिटी वार्डन्स तैनात कर दिए गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए महकमा सिटी वार्डन के रमज़ान कंटीजेंसी प्लान पर अमल जारी। डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन शहबाज अली खान बोले कि माह सयाम के तीनों अशरों में 600 से ज़ायद वार्डन फ़राइज़ अंजाम देंगे। 600 से ज़ायद सिटी वार्डन कराची में 60 से ज़ायद मुकामात पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, जिस पे हम 3 शिफ्टों में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। पहले और दूसरे अशरे में हम 2 शिफ्टों में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। 50 से ज़ायद मुकामात पर रोड पे सिटी वार्डन ट्रैफिक की रवानी को बाहर रखने के लिए काम में मसरूफ़ होंगे। सिटी वार्डन्स ने बताया कि रमज़ानुल मुबारक के पहले और दूसरे अशरे में सड़कों और नमाज तरावी के मकामात, जबकि तीसरे अशरे में बाज़ारों और शॉपिंग सेंटर्स पर मुख्तलिफ शिफ्टों में खिदमत अंजाम देंगे। हमारे पहले और दूसरे अशरे में ये प्रोग्राम बनाया गया है, ट्रैफिक को रवां दवा रखें और रोज़ादार अपने घरों को जाके रोज़ा खोलें, ट्रैफिक जाम ना हो, गलत पार्किंग ना हो, उनको रवानी से अपने घर तक पहुंचना चाहिए। सर तीसरे अशरे में जो हमारा तरावी के जो मामला होते हैं, ट्रैफिक के रवां दवा, नमाज़ियों को परेशानी वगैरह ना हो, और उसके एंड में जो है आपको मालूम है कि फिर वो तरावी के बाद फजर तक हमारा बाज़ारों में
फोकस होता है। सिटी वार्डन्स की तरजीह होती है कि ट्रैफिक जैम के औकात जन्म ना लें। ख़ास तौर पर इफ्तार से कब्ल गाड़ियां रवां दवां रखी जाएं ताकि रोज़ेदारों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन शाजिब रज़ा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।